हेलो गाइस, वेलकम टू मैकीज हब। और आज हम देखने वाले हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, द पास्कल्स लॉ एंड द प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, होपफुली आपने वो अटेम्प्ट किया होगा। उसका सॉल्यूशन भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। Now, the first topic that we're going to study is the variation of pressure with depth. If we consider this figure, we can see that the pressure is increasing as we are moving in the downward direction. यहाँ पे जो लाइनें हैं ये बता रही हैं कि जो मैग्नीट्यूड है प्रेशर का ये लगातार बढ़ता जा रहा है as we are moving in the downward direction. But if we move in a horizontal direction, say we are at this point and now we are going in this direction, we are moving in the horizontal direction, so the pressure at this point and at this point would remain same. It will not going to change, and it will going to change only when we are moving in the vertical direction. That means either vertically downward direction or vertically upward direction. Now we're going to obtain a relation for the variation of pressure with depth, and for that we are considering this figure. So यहाँ पे हमने क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर फ्लूइड एलिमेंट लिया है जिसकी हाइट है डेल्टा z, लेंथ है डेल्टा x एंड यूनिट डेप्थ इनटू द पेपर वो है डेल्टा y. सो अब हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कि कहता है सिग्मा एफ नेट is equals to mass into acceleration, and we are applying in the z direction. So MAZ. Now fluid, it is at rest, so this term would be 0. So here three forces are acting: the pressure force P2, pressure force P1, and the weight of the fluid W. So we have P1, this is the pressure. To convert this thing into force, we have to multiply it with area. So delta x times delta y, this is the area, minus P2, again the area, delta x times delta y, minus the weight of the fluid is equals to 0. Now we know that the weight of the fluid is nothing but the product of mass and the acceleration due to gravity. So here we are assuming that the density is not changing with depth, so we can write this thing as density into volume times g is equals to, so density times the volume. So here volume is the volume of the fluid element, which is delta x times delta y times delta z times g. So हम w की वैल्यू निकाल दिया, अब we can put it here. So we'll get P1 times delta z, sorry, this is delta x times delta y, minus P2 times delta x times delta y, minus w is this much, so rho delta x delta y delta z times g is equals to 0. Now इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे and we'll get delta p or P2 minus P1 as minus rho g delta z. So हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, that is delta p is equals to P2 minus P1 is equals to rho g delta z. Now जो rho z होता है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, और इसको हम दिखाते हैं गामा एस से. सो यहाँ से डेल्टा P जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू माइनस गामा एस टाइम्स डेल्टा z. सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं प्रेशर विल गोइंग टू चेंज, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो है ये. बट जब हम अप्लाई करेंगे या बेसिकली हम जो प्रेशर निकालेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में, तो हम ये वाली एक्सप्रेशन यूज ना करके एक मोर सिंप्लीफाइड वर्जन यूज करेंगे, और वो है P below is equals to P above plus rho g delta z, and here we'll take the magnitude of delta z. So this equation we're going to use when we are finding the pressure in any of the numerical that we're going to discuss in the next few videos. So एक example देख लेते हैं हम. Now you can consider this figure, and here we have to calculate the pressure at this point, and height जो हमें दी गई वो है h, and the pressure which is acting at this point is the atmospheric pressure, that is P atm it is acting.
Now we have to calculate the pressure at this point, so let this be the below point and this is the above point. So P below is equals to, above we have the atmospheric pressure, so P ATM plus rho G, and this distance is delta Z, that is H. So ये होगा value PB की at this point. Now this is the absolute pressure. अब अगर हमें gauge pressure निकालना है तो हमें atmospheric pressure को 0 लेना पड़ेगा and PB would be equals to rho GH, and this is the gauge pressure, and this one was the absolute pressure. Now इस concept को समझने के लिए जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसको मैं एक और फिगर से आपको समझाऊंगा जिससे आपको पूरा concept बिल्कुल crystal clear हो जाएगा. Now let us consider this figure, and here we have to tell whether the pressure at point A, B, C till the point I is same or not. So अगर आप इन सभी पॉइंट को देखेंगे A, B, C, D, E, F and G, आप देखेंगे सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं. दैट मीन्स जो हाइट है इन सभी पॉइंट की फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इज सेम. सो जो प्रेशर होगा एट पॉइंट A, it will be equals to pressure at point B, it will be equals to pressure at point C, and similarly at D, and the pressure at point E, and finally the pressure at point F and G. बट जो पॉइंट H और I है ये डिफरेंट हाइट पे है, और सेकेंडली यहाँ पे जो है इस तरफ जो है ये मरकरी है और इस तरफ जो है ये वाटर है. सो जो प्रेशर एट पॉइंट H है इट विल नॉट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट I, बिकॉज हाइट तो सेम है. अगर यहाँ से आप यहाँ देखेंगे हाइट ये भी सेम हाइट है और ये भी वही हाइट है, लेकिन सिंस द फ्लूइड इज चेंजिंग हियर तो प्रेशर इक्वल नहीं होगा. तो अब हमें बताना है कि प्रेशर किस पॉइंट का ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे ज्यादा होगा या इस पॉइंट का ज्यादा होगा. वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, समझिए और फिर आंसर दीजिए. नाउ आई होप यू हैव ट्राइड द आंसर. नाउ वी गोइंग टू डिस्कस द आंसर. सो यहाँ पे जो होगा, जो PH होगा, प्रेशर एट पॉइंट H, वो ज्यादा होने वाला है प्रेशर एट पॉइंट I. इसका रीजन देखते हैं. फॉर दैट वी आर कंसिडरिंग दिस स्ट्रेट लाइन एज अ रेफरेंस. सो दिस इज रेफरेंस लाइन. यहाँ से हम प्रेशर नापना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन के यहाँ पे प्रेशर पूरा सेम होगा. जी आप इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, प्रेशर सेम है. सो इसको हमने रेफरेंस ले लिया है. अब देखिए ये जो डिस्टेंस है इसको मान के चल रहे हैं कैपिटल H. सो ये डिस्टेंस भी कैपिटल H होने वाला है. सो अब इसको हमने रेफरेंस लिया, तो अगर हमें यहाँ पे प्रेशर निकालना है तो P at H would be equals to pressure at this point, so let pressure at this point be PA plus rho density of mercury, here we will take density of mercury times G times capital H. Similarly यहाँ पे जो होगा pressure at point I would be equals to PA plus density of water times G, and this height is capital H. देखो PA तो सेम है तो ये तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे, लेकिन फर्क पड़ने वाला है GH और GH भी सेम ही है, लेकिन फर्क पड़ेगा इससे डेंसिटी ऑफ मर्करी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर. तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वहां उसका प्रेशर ज्यादा होगा. सो डेंसिटी ऑफ मर्करी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर. दैट इज वाई जो pH की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी PI की. डेंसिटी ऑफ मर्करी जो होती है वो होती है 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो तो हमें पता ही है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है. सो क्योंकि डेंसिटी ऑफ मर्करी ज्यादा है इसलिए इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा. तो ये था वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ. नाउ नेक्स्ट विल बी स्टडीइंग द पास्कल लॉ. सो नाउ वी विल स्टडी द पास्कल लॉ. सो अभी तक आपने ये जाना कि जो प्रेशर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहता है इफ द फ्लूइड इज सेम, एंड इट विल गोइंग टू चेंज इन द वर्टिकल डायरेक्शन. This can also be concluded as that the pressure applied to a confined fluid increases the pressure throughout by the same amount. मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर इधर प्रेशर P1 है और इधर प्रेशर P2 है और अगर फ्लूइड सेम है तो P1 will be equals to P2, और ये चीज हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन और इसी को पास्कल्स लॉ कहते हैं. लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, एंड ये जो आपको दिख रहा है दिस हाइड्रोलिक लिफ्ट. अब इसमें हो क्या रहा है, अब जो फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे ये
let it be F1, और जो force यहाँ प्रोड्यूस हो रही है let it be F2. Now we know that pressure P1 is equals to P2 and P1 is nothing but F1 over A1 और जो प्रेशर P2 होगा वो होगा F2 over A2. Now अगर P1 और P2 सेम है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि F1 over A1 is equals to F2 over A2 होगा, और यहाँ से हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि F2 over F1 is equals to A2 over A1. So यहाँ पे जो F2 है ये है आउटपुट फोर्स एंड जो F1 है वो है इनपुट फोर्स. सो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे इनपुट फोर्स हो वो कम से कम हो और जो आउटपुट फोर्स हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम इस कार को लिफ्ट कर पाए विद द स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1. सो वो सब कुछ डिपेंड करेगा इसके ऊपर A2 ओवर A1, और इसको हम बोलते हैं आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज. जितना ज़्यादा एरिया A2 होगा एज कंपेरिजन टू A1, हमारे F1 जो होगी वो वैल्यू कम देनी पड़ेगी और F2 हमारे पास ज़्यादा मिलेगा. कहने का मतलब ये, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं F2 इज इक्वल्स टू, मान लीजिए A2 ओवर A1 का जो रेशियो है मान लीजिए वो 10 है. सो ये हो जाएगा A2 ओवर A1 इज 10 टाइम्स F1. मतलब अगर हम F1 को 1 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग इट कि अगर हम 1 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका 10 टाइम प्रोड्यूस हो रहा है F2. अब कल को हम इसका एरिया को 100 भी कर सकते हैं. A2 ओवर A के जो रेशियो है, मतलब इसका जो इन दोनों का जो रेशियो है इसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर दीजिए और इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए. तो इसका जो रेशियो है वो हमने 100 टाइम्स कर दिया. सो F2 इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स F1. मतलब अब अगर हम 1 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट में कितना मिलेगा, 100 न्यूटन. यही है मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब कम फोर्स देके हम ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हम मैकेनिकल एडवांटेज फोर्स का ले सकते हैं, टॉर्क का ले सकते हैं, लेकिन कभी एनर्जी का नहीं ले पाएंगे. कल को आप बोल दोगे कि मैं 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी इनपुट में दूं और आउटपुट में मुझे 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी मिल जाए, ये ना हो पाएगा. क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो करके कुछ होता है. एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी ना, तो इसीलिए ये चीज़ नहीं कर पाएंगे. लेकिन हम ये कर सकते हैं बाय यूजिंग द पास्कल्स लॉ. और यहाँ पर भी कंजर्व एनर्जी कंजर्व, आप ये नहीं बोल सकते अगर फोर्स बढ़ा रही हो तो बढ़ गई है तो क्या ये एनर्जी नहीं बढ़, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी एनर्जी. अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे एनर्जी कंजर्व है यहाँ पे भी. अब देखो जो वर्क डन किया है फोर्स F1 ने वो कितना होगा, F1 टाइम्स दिस डिस्टेंस. अभी डिस्टेंस कितना, मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो लाइक दिस इज टाइम्स डिस्टेंस, इतना इसने वर्क किया. अब आउटपुट में हमें वर्क कितना मिलेगा, F2. अब मान लो इसने लिफ्ट किया इतना ही कर पाए. अगर ये इसने इतना किया है तो कुछ जो इसका जो आउटपुट में जितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा वो इससे कम ही होगा, ज़्यादा कभी नहीं होगा. सो लेट इट बी D2 और लेट इट बी D1. सो अगर हमारी एफिशिएंसीज को हम नेगलेक्ट कर दें, लेट इट बी 100% एफिशिएंसीज, तो हम ये कह सकते हैं कि F1 D1 विल बी इक्वल्स टू F2 D2. यहाँ पर भी एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ फोर्स में इंक्रीज हुआ है. सो एनर्जी इज स्टिल कंजर्व्ड हियर. सो ये कंसेप्ट था पास्कल्स लॉ का. आई होप आपको पूरा पास्कल्स लॉ क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस. Now this video is getting a little bit longer, so we'll discuss the pressure measuring device in the next video. But for now we can discuss the problem that I given in the last video. And problem ये थी कि जो atmospheric pressure we are given as 14.5 psi हमें दिया गया था, और जो वेपर प्रेशर है वो हमें दिया गया था 5.8 psi, और हमें निकालना क्या था, द एब्सोल्यूट प्रेशर. सो वी नो कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है and it equals to the atmospheric pressure minus the vapor pressure. So atmospheric pressure is 14.5 psi minus the vapor pressure is 5.8 psi. So यहाँ से हमारे पास absolute pressure निकल के आएगा 8.7 psi. So ये था solution equation that I given in the last video. Now I'll going to end the video here, and next video will discuss the pressure measuring device. And please do not forget to like, share and subscribe the channel. और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा. Goodbye.